নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন 23 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাওনমল আগরওয়ালের অনশনের 14তম দিনে অনশন প্রত্যাহার। নিজের বাড়ির পাশে অর্থাৎ 74 নম্বর বটতলা স্ট্রিটের একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ির দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা পরিষ্কার না করা, এছাড়া 23 নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ বাড়ির প্রমোটিং বন্ধ করা ও স্থানীয় বেশ কিছু দাবিতে গত 17 জুন থেকে আমরণ অনশনের ডাক দিয়ে অনশনে বসেছিলেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের সত্তরোর্ধ্ব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাওনমল আগরওয়াল। ইতিমধ্যেই দাবিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পোস্তা থানায় ডেপুটেশন জমা করা সহ স্ট্রিট কর্নারে স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছেন তার অনুগামীরা। তার অনশনের 10ম দিনে কর্পোরেশন থেকে তার বাড়ির পাশের ভগ্নপ্রায় বাড়িটির জঙ্গল ও জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাতেও তিনি অনশনে অনড় থাকেন। এরপর কর্পোরেশন থেকে তার কাছে অনশন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয় এবং তার বাকি দাবিগুলির বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়। তাছাড়াও এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকর্তারা ছাড়াও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে অনশন প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন। আজ 14তম দিনে স্থানীয় বর্ষিয়ান সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বুলাকি দাস মিমানির হাতে ফলের জুস খেয়ে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে তার অনশনের 12তম দিন থেকে তার সঙ্গে ওই এলাকার এক সমাজসেবী ও যুব রাজনৈতিক কর্মী রাহুল পাণ্ডেও অনশনে যোগ দেন। তিনিও আজ বুলাকি দাস মিমানির হাতে ফলের জুস খেয়ে অনশন প্রত্যাহার করেন। আজও তার পাশে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সন্তোষ মিত্র, মুন্না পাণ্ডে, আকাশ পাণ্ডে, শ্যাম টাক, রঘুনাথ আগরওয়াল, প্রকাশ শুক্লা, টিঙ্কু রজক, অভিষেক রজক, আশুতোষ গুপ্তা, চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি, মুকুন্দ মিশ্র, সুরেন্দ্র মিশ্র, শশাঙ্ক দেরাসরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও তার অনুগামীরাও ছিলেন। তার অনশন ভঙ্গে তাকেও ও রাহুল পাণ্ডেকে ফুলের মালা পরিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়। এখন কড়া খবরে শুনুন তার অনশন প্রত্যাহারের আগে কি বললেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব शिवजी पांडे। शावनमल जी अग्रवाल आमरण अनशन राजनीति के दरमियान गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बढ़ना और आगे चलना, ये अंतिम लड़ाई है आमरण अनशन की। आज 14 दिन बीत गया। इनका त्याग और समाज के प्रति बलिदान देखकर समाज के बहुत से लोग आगे आए हैं, उसमें से एक राहुल पांडे। यहाँ पर डिमांड है बड़ा बाजार अंचल में विशेषकर किसी के पास ताकत नहीं है विरोध करने का। जो ताकत जुटाए हैं शावनमल जी, ये सचमुच में धन्यवाद के पात्र। ऐसी आवाज गली गली से उठनी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के साथ जो भूमाफिया, बिल्डर, फाइनेंसर, उनके पास अपूर्व ताकत है। क्या चीज भाई? पैसे का। पैसे पर सब कुछ बिकता है, कुछ लोग जो है वो बिकते नहीं। किस तरह लोग दुखी तो त्रसित हैं, जिनके साथ गुजर रहा वही जाने। आज उस अनशन का 14 दिन हो गया। समाज के परम पूज्य, जिनको हम लोग सब हर समय याद करते हैं, हमारे साथ प्राइम मॉडल सोसाइटी में मुलाकात होती रहती है, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम लोग निश्चित किए यहाँ पर बड़े राजनेता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है इस अनशन के स्थान पर बैठकर कि कहीं न कहीं नेताओं का भी सहयोग है। जो कुछ बड़ा बाजार में गड़बड़ी हो रही है,
अनैतिक कार्य हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं उन नेताओं का भी सहयोग है। শিউজি পান্ডের পর আমরা শুনব অনশন প্রত্যাহার করে এলাকাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন তার এই 14 দিন ধরে অনশন কর্মসূচি, এই বিষয়ে কি বললেন শ্রাবণমল বাবু, তাই শুনুন। सबसे पहले मैं बुलाता की मेहमानी को प्रणाम करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति। हर व्यक्ति पहले सामाजिक होता है, बाद में राजनीति। हमारा सबसे बड़ा परिचय सामाजिक परिचय। साथियों, 17 जून सुबह 11 बजे मैंने प्रशासन को, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, सभी को इकट्ठा करके यहाँ पर आमंत्रण शुरू इसलिए करना पड़ा। ठीक मेरे बगल में लगभग 8 साल से यहाँ गंदगी जमी हुई थी। ऐसी गंदगी जो नहीं रहनी चाहिए। इस महानगर के बीच में पड़तला स्ट्रीट जैसे एक अंचल में और एक मकान के अंदर में इतनी भयावह गंदगी। सबसे बड़ी बात कि मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक सभी विभागों में सभी अधिकारियों से मिन्नतें की कि देखिए, मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये मोहल्ला का सवाल है, मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका भी सवाल है। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, इन्फेक्शन होता है हर मानसून में, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मकान एक प्रोमोटर का है। और आप जानते हैं आज के समय में प्रोमोटर का शब्द का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रोमोटर ऐसा काम करता है, लेकिन प्रोमोटर का शब्द आज काफी बदनाम। लेकिन मैं इसमें सफलता नहीं मिली। जब नहीं मिली, मैं गांधीवादी व्यक्ति हूं। मैंने सोचा, तब मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ऋतुराज होटल में अग्निकांड के बाद 14 लोगों की जान गई। वो दृश्य देखकर मेरे हृदय में आया कि हमारे अंचल में भी ऐसे बहुत से मकान बने, बहुत से अवैध निर्माण जिसको कहा जाता है, वो ऐसे बने हैं, अच्छा गृह की तरह बना दिए गए हैं। वहां फायर फाइटिंग सिस्टम बोल के कोई चीज नहीं। अब सोचिए, हम वहाँ रहते तो हैं, व्यापार भी करते हैं, गद्दी भी है, ऑफिस भी है, शोरूम भी है, लेकिन वहाँ कोई फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ नहीं है। मैंने प्रशासन से और सरकार से यही मांग की थी कि साहब, आप जर्जर मकान नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो मकान बन रहे हैं, अवैध बन रहे हैं कि वैध बन रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन मकानों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, कम से कम वहाँ इसकी व्यवस्था तो कर दीजिए। अब वो वैध है या अवैध है, ये आपका मामला है, आप देखते रहिए। लेकिन जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है? अगर कहीं आग लग जाए, ऋतुराज होटल जैसा कांड घटित हो जाएगा, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, आंसू बहाएंगे, तो ऐसी नौबत आए, हम सावधानी के तौर पर इसकी व्यवस्था तो कर सकते हैं। मेरी मांग, मुख्य मांग ये थी इस कचरा सफाई के साथ। लेकिन उसके बाद देखिए, कचरा सफाई तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बातें कही कि जो अवैध निर्माण हुए हैं, 2 तल्ले के 6 तल्ले 5 तल्ले बन गए, आप भले उसको मत तोड़िए, लेकिन वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वहाँ व्यवस्था कर दीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कर्मी भी हूँ। 50 सालों से मैं समाज सेवा राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सक्रिय हूँ। तो मुझे एहसास होने में देर नहीं लगा, इस अंचल में जो प्रोमोटर राज चल रहा है, इस अंचल के अंदर में गली गली में प्रोमोटर राज चल रहा है, और उनका एक ही कहना होता है, हमारा सेटिंग नीचे से ऊपर तक। ये सेटिंग मैंने देखा कचरा सफाई में। तो कहने का मतलब ये है, अभी वो हमारे आदरणीय सीताराम जी शर्मा हैं, आप लोग जानते होंगे, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, पड़तलमान में बेलारूस के कॉन्सुलेट हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अंचल में पहले सामाजिक आंदोलन होते थे। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया एक कि पहले कल्याण दत्तो नाम का एक ओसी होता था बड़ा बाजार थाने में, बड़ा क्रूर था, बड़ा तानाशाह था, लोग डरते थे उससे, कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था। लेकिन हम भी उनके 5 दिन में के समाज सेवा का काम कर चुके हैं,
स्वर्गीय सागरमल जी शर्मा पड़ा बिहार में सभी जानते होंगे, उनके पुत्र अभिमय जी शर्मा पार्षद 42 नंबर वार्ड से। सागरमल जी शर्मा ने ये ऐलान किया कि मैं इस तानाशाही को खत्म करने के लिए आमरण अनशन पर बैठना हूं। परिणाम क्या हुआ? आवाज सरकार तक पहुंची, कल्याण बाबू यहाँ से तबादला कर दिया गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इसलिए कहा कि सामाजिक आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा ताकत होती है। सीताराम जी का कहना यह था कि इस अंचल में पहले सामाजिक आंदोलन होते थे, सामाजिक लोग सामने आकर विरोध करते थे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करते थे। लेकिन इन दिनों में ये सब बातें खत्म हो गई। इन बातों पर कोई गौर नहीं करता, आने वाली पीढ़ी इन बातों को भूल चुकी है। तो मैंने सोचा कि कम से कम क्या होता है, सरकार प्रशासन तक कब आवाज पहुंचेगी, वो कब जगेंगे, कब काम होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन हमारे अंचल में जहां हम रहते हैं वहाँ इस बात की शुरुआत होनी चाहिए। इस बात की शुरुआत इसलिए होनी चाहिए कि जहां हम तकलीफ पाते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, साफ सफाई, सड़क, बिजली, सुरक्षा, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है। यदि हमें लगे कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमारा जो अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए, हमारे जीवन जीने के लिए जरूरत है, हमारे मोहल्ले के लिए जरूरत है, अगर ऐसा नहीं माना जाता है, जरूरी नहीं कि हम सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता। आवाज पहुंचाना सरकार विरोधी काम नहीं है। तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। हम पार्टी कोई भी करें, लेकिन जनता के लिए बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकार विरोधी हैं। पहले ऐसे होता था, लेकिन आजकल ऐसे नहीं होता। इसी मेरे आंदोलन में मैंने देखा, एक मैं तृणमूल कांग्रेस का कर्मी, 20 साल से मैं तृणमूल कांग्रेस का सक्रिय कर्मी हूँ। इस वार्ड से जहाँ मैं तृणमूल कांग्रेस ने मुझे पार्षद चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाया था, ठीक है, पार्टी का आदेश था, मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैंने चुनाव लड़ा, मैं पार्टी का एक कर्मी हूँ, ये मेरी पहचान है। लेकिन मेरा धर्म क्या है, पार्टी में किस लिए हूँ मैं, कि जनता को तकलीफ नहीं हो, जनता की बातों को मैं सरकार के सामने रखूं और उसके लिए आंदोलन करूं, यही तो पार्टी का काम है। लेकिन मैंने देखा इस आंदोलन को, एक छोटा सा आंदोलन था, बिल्कुल मेरे द्वारा किए गए आंदोलन था, छोटा सा आंदोलन। बाद में लोग जुड़े, हमारा घर का बच्चा राहुल पांडे ये आया, खुशी से आया, जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी हिम्मत बढ़ी, सही में मैं टूट रहा था, मेरी शक्ति क्षीण हो गई थी। लेकिन इस जवान को जब देखा तो मुझे भी जोश आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको भी, इस आंदोलन को भी कुचलने की हर तरह से कोशिश की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर तरह से प्रयास किया गया। मेरी निजी संपत्ति के ऊपर आक्रमण किया गया। मकान मालिक और किराएदार के आपसी झगड़ों को हर मकान में मिलेगा, उसको उभार कर यहाँ मुझे गाली गलौज तक की गई, मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। हमने वो भी बर्दाश्त किया, लोगों ने देखा। ये किन लोगों ने किया, ये मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हुई, उन लोगों ने षड्यंत्र रचकर यहाँ पर षड्यंत्र रचकर ये काम करवाया। ये था कि मैं यहाँ मंच छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हम 34 साल तक वामफ्रंट सरकार के विरोध में भी लड़े हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हम डर के भागने वाले लोगों में से नहीं है। हर विपदा का मुकाबला करना हम लोगों को आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि हम 2 बार गए, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम यहाँ थे ही नहीं, हम अपने घर चले गए थे। अरे कम से कम आमरण अनशन का मतलब वो लोग नहीं जानते। मुझे अफसोस है कि वो लोग आमरण अनशन का मतलब ही नहीं जानते। जो आमरण अनशन पर बैठता है 24 घंटा उसको वहां रहना पड़ता है। केवल बाथरूम वगैरह के लिए वो भले जा सकता है, क्योंकि उसको खाना पीना तो होता नहीं। लोग कहते हैं कि भूखा कैसे रहेगा, ये जरूर खाता होगा। महात्मा गांधी जब 29 दिन तक अनशन किए थे, बहुत बड़ी विभूति थी भाई, लेकिन उदाहरण छोड़ के गए हैं। वो जब अनशन करके हटे तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी कहा था कि आप जो है मिस्टर गांधी आप खाए बिना कैसे रह गए। तो गांधी ने कहा था, कम विथ मी, आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ खाए बिना आदमी कैसे रहता है। तो मैं उसी युक्ति को सामने करके कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि एक आदमी 14 दिन तक कैसे भूखा रह सकता है, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊँ। उनको खुला चैलेंज है जो ये कहते हैं कि 15 दिन कैसे आदमी
बिगड़ खाए पिए बिगड़ रह सकता है। इस उम्र में भी मैं दावा के साथ बोलता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आए मेरे साथ, अब मेरे साथ बैठे, देखिए मैं 15 दिन फिर बैठने तैयार हूँ। और जो सवाल उठाते हैं वो बैठ कर देखे कि वो कितना समय तक रह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है साथियों, हमने तो अपनी उम्र जी ली, अब हम तो रवानगी की तरफ हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ना, प्रेम है, मोहब्बत है उस जगह से, आने वाली पीढ़ी से। इसलिए इस पीढ़ी को आगे आने के लिए हमारा आह्वान है, आइए, राजनीतिक बातें अलग है, राजनीतिक मंच अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, लेकिन जहाँ सामाजिकता की बात है वहाँ हम सबकी विचारधारा एक है कि हमारे ऊपर, हमारे पड़ोसी पर, जनजीवन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो सच जनजीवन होना चाहिए। इसकी मांग करने का अधिकार हर व्यक्ति के ऊपर। यहाँ लोगों ने कहा हम 2 दिन वहाँ गए हैं, अग्रवाल जी मिले नहीं। हमको ताज्जुब हुआ भाई, हो सकता हम कहीं बाथरूम गए हो तो ऐसा कोई व्यक्ति आ गया हो। हमने सीसीटीवी पूरा खंगाल कर देखा कि जो व्यक्ति ने कहा कि हम 2 बार गए थे, पूरा सीसीटीवी देखा साहब, हमको तो नजर नहीं आए। अब वो वायु मार्ग से अगर आए होंगे तो मुझे पता नहीं है। तो ऐसी हालत, ये क्या है, मुझे बदनाम करने का। मैं नहीं था, घर चला गया था, मैंने खाना खाने चला गया था, मैं गया लेकिन वो मिला नहीं। 2 बार, 1 बार भी नहीं, 2 बार आए। तो ये सब बातें कौन, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, क्यों, क्या तकलीफ है। एक व्यक्ति भूखा, खुद के लिए, मोहल्ले के लिए, जनजीवन के लिए भूखा बैठा है, और आप, क्या तकलीफ हो रही है आपको कि आप ऐसे सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। यानी आप आमरण अनशन जानते ही नहीं कैसे होता, किन लोगों ने कैसे किया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आमरण अनशन किया था, यहीं पर धर्मतल्ला में वो बैठी थी। ऐसी बातें होती है तो खराब लगता है, इससे हमारा मनोबल नहीं टूटता। हमें यह पता चलता है कि हमारे सामने लड़ने के लिए कौन लोग खड़े हैं और उनका मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो समाज को क्या दे रहे हैं और हमारा समाज की दिशा में जा रहा है। यही सब बातें हैं। मैं ये सब बातें कह के और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ इकट्ठे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाया। राहुल पांडे युवा लड़का है, आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा, हम सबका आशीर्वाद है। और एक बात और है साथ में कि जहाँ भी अन्याय विचार है वहाँ हम थे, हैं, और हम निरंतर इसी तरीके से हर अन्याय के विरोध में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो इतना ही कर मैं अपनी बातों को সঙ্গে বিগত 3 দিন ধরে তাকে সাপোর্ট করে অনশনে বসেছিলেন এলাকার এক রাজনৈতিক যুবনেতা রাহুল পান্ডে। অনশন প্রত্যাহার করার পর তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। ये कार्यक्रम या ये अनशन साबरमल जी अग्रवाल के द्वारा 14 दिन से लगातार चलाया जा रहा है। मैं शुरुआती दिनों में इस अनशन में शामिल नहीं हो पाया। उसका वजह था कि मेरे जानकारी में था कि ये बहुत सीनियर लीडर हैं, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। इनके अनशन में बैठते ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो डिमांड्स थे वो पूरे हो जाएंगे। जब 5-6 दिन बीत गया, मेरे पापा जी के ये दोस्त भी हैं, मुझे लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 5-6 दिन बीतने के बाद अचानक मैं फेसबुक लाइव में देखा कि कुछ लोगों का यहाँ पे वो हड़ाका बुलेट माने धमाका जैसा हो रहा है। तो मेरे को लगा कि कोई आक्रमण तो इनके ऊपर नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भाग के आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे 2 पार्टी हो गया, 2 पक्ष हो गया। एक हो गया सत्ता पक्ष जो सब कुछ अपना कंट्रोल में करना चाह रहा है, और एक पक्ष ऐसा है जो उसका विरोध कर रहा है, बुराई का विरोध कर रहा है। और जहाँ भी बुराई का विरोध करना होगा वहाँ महात्मा गांधी जी का बात हर समय मेरे को याद होता है, सत्य अकेला रहता है लेकिन कमजोर नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि मेरा ये सामाजिक दायित्व है, भले मैं एक अलग राजनीतिक पार्टी से हूँ, मेरा ये सामाजिक दायित्व है कि मैं इनका अनशन में इनका सहयोग करूँ। मैंने इनसे अनुमति मांगा कि सर क्या मैं आपके अनशन में आपके साथ बैठ सकता हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, तो मैं इनके साथ अनशन में बैठा। उसके बाद 3-4 अलग अलग लोगों का मेरे पास फोन आया कि आपका पॉलिटिकल करियर में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये अलग राजनीतिक दल से है, मैं अलग राजनीतिक दल से हूँ। मैंने बोला मेरे को पॉलिटिकल करियर का कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे सत्य का लड़ाई होगा, जहाँ पे अहिंसा के लिए लड़ना होगा, हम लोग जरूर लड़ेंगे। और ये जान के मुझे बहुत हर्ष हुआ कि सत्याग्रह में ताकत है, गांधी जी का रास्ता अहिंसा में ताकत है। हम लोग का जो मुख्य डिमांड था उसमें से एक डिमांड था कि जो 7 साल से कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ भी करके
ये कचरा हट ही नहीं रहा था। यहाँ पे बिल्ली मर जा रहा, कोई भी मर जा रहा, बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन सत्याग्रह में वो ताकत है कि ये कचरा हटना चालू हो गया 2 दिन से, और हमारी जो मुख्य मांगे थी वो करीब करीब पूरी हो गई। इधर साबरमल जी का स्वास्थ्य लगातार खराब होते जा रहा था, ये लगते हैं जोश में है, लेकिन इनका हालत बहुत खराब था। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया कि कृपया आप अपने अनशन को समाप्त करिए, नहीं तो आपका शरीर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो आखिरकार हम लोगों की बात मानते हुए इन्होंने आज अनशन समाप्त करने की घोषणा की। एक बात और मैं बोलूंगा, सत्य कमजोर हो सकता है, अकेला हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा, अंत में सत्य ही जीतेगा। जय जगत। অনশন প্রত্যাহারের পর 23 নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও শাওনমল বাবুর ভাই রঘুনাথ আগরওয়াল একদিকে যেমন কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে অনশনের কারণ নিয়ে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এবার। देखिए, मेरे बड़े भाई शाहनवाज अग्रवाल वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने सबसे पहले यहाँ जहाँ पत्रों के माध्यम से जाकर इन्होंने हर जगह जगह अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, और इस कचरे को जो चौतन और बतला स्ट्रीट का एक भाग गिरकर हमारे मकान की तरफ आया, और जो आज विगत 9 साल 10 साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इनकी बातें कहीं भी नहीं सुनेगी। ऐसे में एक ही बात कहा गया कि ये जुडिक्शन मैटर है, इसके अंदर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अंत में हम इसी मकान में रहते हैं, बगल के मकान में, और पूरे परिवार सहित रहते हैं। तो इन्होंने अपने कभी यहाँ पे मच्छर डेंगू हो जाता है, कभी मलेरिया मच्छर होते हैं, कभी उस पूरे पे कुत्ता मरा हुआ मिलता है, कभी बिराल मर जाता है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। अंत में इन्होंने सामाजिक स्तर पे जाके और ये बरतला स्ट्रीट रोज कम से कम यहाँ पे लाखों लोग हावड़ा स्टेशन पे मेट्रो लाखों लोगों का आगमन है, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। ये एक खतरनाक पोजीशन पे मकान है, अगर ये गिर जाए तो पता नहीं कितने लोगों की मौत होगी इसके अंदर में, भगवान न करे ऐसा हो, मगर बाई चांस गिर जाता जिसका कि अभी तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं है। ये अच्छी बात है कि प्रशासन ने इनके आमदन अनशन के बाद ध्यान दिया। कारपोरेशन का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने इनके आंदोलन को देखते हुए उचित कदम उठाए, और वो जो गंदगी पड़ी हुई थी, जो राविश पड़ा हुआ था, उसको विगत 4 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेशन के लोग आ रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, और कोई दुर्घटना न घट जाए उसका बंदोबस्त भी लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को और जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया उन सबको मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हमारे घर के अंदर भी आप जानते ही हो कि परिवार में क्या होता है, विगत 14 दिन से जो आदमी कुछ भी नहीं खाए, केवल पानी के बल पे जिंदा रहे, वो आदमी की स्थिति क्या हो सकती है, वो उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। घर में हमारी भाभी जो इनकी पत्नी है, बच्चे, भाई, सभी सुबह से लेकर रात तक परेशान रहा करते थे कहीं उनके कुछ हो न जाए। अंत में कई सामाजिक लोगों ने इनसे कहा कि भाई तुम अपना ये आमदन अनशन छोड़ दो, और कॉर्पोरेशन की सहायता से जो ये मकान की ढाबी उठने लगी, तो हम सभी इनके जो दोस्त या सामाजिक लोग, राजनीतिक बंधु बांधव जो भी थे, सभी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको छोड़िए, नहीं तो आपके शरीर की जो अवस्था है वो बहुत ही डाउन हो रही है,
तो सही बात भी है कि आज 70 साल उम्र पार करने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके शरीर उसका कहाँ चला गया है कोई नहीं जानता। घर के अंदर में इनकी मेरी भतीजियों की शादी बाहर हुई है, वो रोज फोन करती है, रोज रो रही है कि किसी तरह पापा को उठाओ। हम लोग पूरा परेशान थे, यानी ये अनशन पे बैठे थे और पूरे परिवार की स्थिति बड़ी खराब थी। खैर जो भी हुआ, सामाजिक लोग, ये एक सामाजिक आंदोलन था, क्योंकि हमारे भाई साहब तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए विगत 20 वर्षों से और ममता बनर्जी पर उनका भरपूर आस्था है। आज भी ममता बनर्जी पे आस्था है, किंतु यहाँ विभिन्न पार्टियों के लोग आए, कांग्रेस के आए, बीजेपी के आए, और भी कई पार्टियों के लोग यहाँ पे आए, टीएमसी के तो आए, और कई सामाजिक व्यक्तिगण भी आए और सभी ने इसे अनशन भंग करने के लिए कहा। और ये बड़ा अच्छा लगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन के सहयोग से जो ये कचरा उठ रहा है अभी, उसके बाद इन्होंने अनशन तोड़ने की सबकी बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने अनशन तोड़ा। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक पार्टी जो इनका विगत 3 दिनों से इनके साथ अनशन में बैठा था, राहुल जी पांडे, जिन्होंने इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इनका सहयोग किया और इनके साथ लगातार 3 दिनों से ये बैठे हुए थे अनशन पे। अच्छा लगा, समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति है जो सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए, और हमें भी ये उत्साह मिलता है कि अगर ऐसी बात कहीं आती है जो समाज के कल्याण के लिए हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम पहली बात ऐसा होना नहीं चाहिए। आज इस प्रकार के लोगों ने, आज बड़ा बाजार की जो स्थिति है, हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है, हम उसी पे ध्यान देंगे, बाकी सब जगह हमको ध्यान देके क्या कर सकते हैं। तो भी आज इस प्रकार के बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, 2 तला के मकान 6 तले के हो जा रहे हैं, 4 तले के हो जा रहे हैं, 4 फुट की गली जहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती, दमकल नहीं घुस सकती, वहां पे 6 तले का मकान खड़ा कर दिया गया। और ये सारी बातें को देखते हुए अगर कहीं आज मेरे बगल में मकान है 13 नंबर अशोक, तो रिपेयरिंग ऑर्डर पे उस मकान का लेकर उसमें एक चढ़ा दिया गया तल्ला और चौक को खत्म कर दिया गया, वहां पे मार्केट बना दिया। आज वो पूरा लाचार भी है, कहीं से भी अगर कहीं उस बिल्डिंग में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हम लोग लाशें गिनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपा ऐसे प्रमोटर और ऐसे गलत लोगों को ये काम न करने दिया जाए, एवं जो मकान बन चुके हैं, जहां लोग जगह लेकर खरीद कर बस चुके हैं, उनको निष्कासित भी न किया जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लेते हुए उनकी सुरक्षा क्या है इस पर ध्यान दिया और आइंदा ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कॉर्पोरेशन सचेत। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।